Hello, good evening friends. My name is Vinay Lhase and once again I am back with another paper. This is the paper now. This time it is Soldier Technical. ये वाला पेपर मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्व करने के लिए. मैथ्स के जो पेपर्स क्वेश्चंस पूछे गए थे तो विल बी डिस्कसिंग दैट. और ये पेपर गोवा में पूछा गया था, गोवा के एग्जाम में सोल्जर टेक्निकल प्रीवियस ईयर का पेपर. तो लेट्स बिगिन दिस विदाउट वेस्टिंग द टाइम. अरे कहाँ गए? इधर है. यस. तो ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 12 डेज. ये टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है केवल. ठीक है, टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है. लेट अस सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. ए एंड बी, आई होप इफ यू हैव डन दिस, तो आपको पता है कैन डू द वर्क इन 12 डेज, कैन डू द वर्क इन 12 डेज. देन बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 15 डेज. then C plus A can do the work in 20 days. This is given to us. A plus B plus C, what is the time taken is asked. Now here same process in any time and work questions, same process. Step number 1, find total work. कि what is the total work? Assume the total work to be LCM of 12, 15, 20. क्या करना है? LCM of 12, 15, 20 को लेना है, वो आपको LCM assume करना है. तो LCM हम लिखेंगे LCM ऑफ 12, 15, 20. शॉर्टकट मेथड अगर आपको पता है, मैं कभी तो सिखा दूंगा. LCM आ जाएगा 60 हियर, 60. आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वन डे वर्क. एंड व्हाट इज दिस वन डे वर्क? व्हाट इज दिस वन डे वर्क? Simply in 12 days if he can do 60 units, then daily 5 units. How? 12 into which number is 60? 12 5s are 60. 15 into which number is 60? 15 4s are. 20 into which number is 60? 23s are. So 23s are 60. So this is one day work, unit per day, unit per day. You need not write in the exam. एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना 5 4 3 लिख दीजिए. A प्लस बी प्लस सी पूछा था तो इसको ऐड करेंगे. ये कितना आया? 5 4 9 9 3 12. टोटल इज 12 यूनिट पर डे. मीन्स daily they are working and daily they are making 12 units per day. वेट, ये क्वेश्चन में A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए कमिंग 2 times, बी बी they are 2 times, C and C they are 2 times. So all this is 12 units is not the work of A, B, C. It is the work done by 2 times of A, 2 times of B, 2 times of C. Because A is coming 2 times and everyone is coming 2 times. So therefore A plus B plus C becomes 2 1s are 2. You can cancel this. 2 1s are 2, 2 6 are 12. We'll be getting 6 unit per day. And time taken is nothing but total work 60 divided by total one day work 6. 60 by 6 is nothing but 10 days. Let's check the option. Yes, option B. ये आंसर यहाँ पर है. Height of the cone whose area of the base is 30 and volume is 500 मीटर. शंकु क्या बोलते हैं हिंदी में? शंकु बोलता है. ठीक है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. यहाँ पर इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं. तो वॉल्यूम इज समथिंग, आई मीन वॉल्यूम, you have to remember volume of this cone is 1/3 pi r square multiplied by the height. ये इसकी height होती है h and this is the radius. Okay, yeah, but they have not given the radius, they have given the area of the base. Can you see this area of the base? This is the circle and area of the base, area of base is basically a circle, and circle area we know it is given by pi r square. And how much is this area of the base? 30 meter square. So it is 30. So they have given us directly pi r square value. The examiner has given us pi r square value here. So we'll substitute that directly. 1/3 into pi r square is 30 and height is asked, I think, right? Height of the cone whose area of the base is what? Height is asked, h. Volume is given. Volume is 500. चलो let's simplify this. 3 1s are 3 10s are, काट दिया, 10 से 10 काटा, h is equal to आ गई 50. तो height of this cone is 50 मीटर. ये है हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर होगा तो सिलेंडर आपको याद रखना है 2-3 चीज़ें. ठीक है, ये तो है A, आपको याद रखना चाहिए कि ये सिलेंडर है. दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई तो दे रहा है अच्छे से. तो ये सिलेंडर है हमारा. सिलेंडर में वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा तो चेंज करेंगे. एंड कोन अगर आप बनाते हो तो इसी का वॉल्यूम जो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम था, ये सिलेंडर था
सिलेंडर और ये है हमारा कोल. तो व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम विल बिकम 1/3 here, 1/3 pi r square h. Here only pi r square h and here it is 1/3 of pi r square h. Moving ahead, percentage question. Rate of the sugar increased by 25%, then the family reduces the consumption by what percent? This is most common asked question कि something increases by this percent, how much percent we should decrease. But mostly student will take this 25%, but this is wrong answer. This is actually the wrong answer here. Okay, so correct way of doing the question is rate of sugar increases by 25. Two methods you can apply, but I will tell you this is formula method and another is directly. Ratio method also is there. Many methods are there to do this question. So method number 1 is the formula method, which I am giving you. Remember, whenever in the sentence number 1 it is given in this type of question, the rate of sugar is increased by 25%, something percentage increases. So in that case the answer for the question will be x divided by 100 plus x into 100. Now remember the thing, if here in place of this increase decrease is given, write down in place of increase decrease is given, the formula will become x divided by 100 minus x. These two difference we have to remember. If decrease is given, minus x. Now this is increase plus x. What is x? That is given percentage. X is nothing but given percentage. So let us write this 25 divided by 100 plus 25, and 100 plus 25 is 125, you know. So 25 by 125 will cancel directly. 25 1 जा 25, 25 6 जा हो जाएगा. ठीक है, तो जरा जल्दी करना है आपको क्वेश्चन. 25 1 जा 25 6 जा 1/6. when you simplify into 100 you will be getting 1/6 is 16.66%. ऑप्शन है? ऑप्शन तो नहीं है इसका. 25% इंक्रीज हो गया है या ओके, इंक्रीज हुआ है 25 14 1/5 1 बट एनी मिस्टेक आई हैव डन. 25% 125 सही तो है. 25 1 जा 25. ओके ओके, हियर आई हैव डन द मिस्टेक. ये 25 इंटू 25 1 जा 25 5 जा 125 होता है. तो 1/5 इंटू 100 इज नथिंग बट इट इज 20%. ओके 20%, मैंने गलती से इसको 6 कर दिया था. 20%. ऑप्शन दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. The greatest number that will divide this is this, leaving the same remainder in each case. So remember, greatest hint is highest common factor. So take this number. Since these number are bigger, what we can do here, another technique is take the difference of these two numbers, all these numbers. Let us first do the difference of all these numbers. Okay, from this number I will subtract this. 513 minus 366. 13 minus 6, that is 437. ओके देन 11 माइनस ये आपका हो गया 4. 11 माइनस 7 इज 4, देन 1. अनदर दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस 513 माइनस 324, सो विल बी गेटिंग 34. 13 माइनस 4 इज 9. ओके देन 11 माइनस 2 इज बेसिकली 11 माइनस 3. 11 माइनस 3 इज 8 एंड फाइनली 189. देन मूविंग अहेड, इसका और इसका डिफरेंस 366 में से 324 को माइनस करेंगे. 6 माइनस 4 इज बेसिकली 2 and 6 2 is 4 and khatam. I think, yeah, let us take highest common factor of all these three things. That will be the answer for the question. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है. HCF निकालना है. HCF आई होप यू नो 147 189 42. फैक्टराइजेशन से करेंगे इसको. HCF 7 के टेबल से कट होता है. ठीक है, 7 7 से जाएगा ना सभी. यस, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42. आफ्टर दिस 3 इज कॉमन. 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 2 जा 6. यस, खत्म हो गया. नथिंग कॉमन, स्टॉप इट. हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF इज 7 into 3. 7 into 3 that is nothing but 21 21 21 21. ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. Age of 4 brothers. So simple again question. Number of persons 4 and ये क्या है, average है. Average is given. Average is equal to how much? So we have to remember the formula. Average multiplied by number is equal to nothing but total or else sum. So 12 into 4 is nothing but 48 years. So total age of all the peoples is 48 years. सभी का मिलकर कितना हो गया, 48 years हुआ. इफ़ द एज ऑफ मदर इज इंक्लूडेड, उसके इसमें मदर को भी इंक्लूड करेंगे तो +1 हो जाएंगे. सबसे पहले +1, तो ये हो जाएंगे नंबर 5.
एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 ईयर्स, एवरेज क्या हो गया, एवरेज भी 5 से बढ़ गया, 12 + 5 कितना हो गया, दैट इज 17। तो 17 5 कितना है, 17 5 85, ठीक है। सो 85 ईयर्स हो गया है। सो आपको देखना है इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ है, दैट विल बी द एज ऑफ मदर। यहाँ से यहाँ पे 35 37, सो दिस इज डिफरेंस इज 37 ईयर्स। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही बेसिकली किसका एज है, मदर का एज। तो मदर एज इज 37 ईयर्स, ऑप्शन में है यस, ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। रिमेंबर अ मैन रोज बोट एट 13 km/h अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब क्या है, नीचे से ऊपर वो गया क्या स्पीड से, 13 kmph से गया। सो दिस इज अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम यू कैन राइट अपस्ट्रीम स्पीड, मतलब ऊपर जा रहा है, ही इज गोइंग अगेंस्ट। एंड व्हाइल कमिंग, he is coming with the speed, after when he go up he will come down with the speed of 26 km/h. This is called as what, this is called as downstream speed, okay, something like this. Now remember the direct formula in this case, बिना फॉर्मूले की भी कर सकते हो, लेकिन आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको निकालना है। दो चीज पूछता हूँ, बोलता हूँ मैं, अगर बोट या फिर स्विमर एक ही होता है, इफ दिस स्पीड इज आस्क्ड, स्पीड ऑफ बोट एंड स्विमर इज आस्क्ड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड ds प्लस us डिवाइड बाय 2 आपको करना है। लेकिन अगर स्पीड ऑफ रिवर पूछेगा, रिवर ही पूछा है ना, स्पीड ऑफ व्हाट, स्ट्रीम, स्ट्रीम इज व्हाट, रिवर। सो इन दैट केस सब्ट्रैक्ट दिस ds माइनस us डिवाइडेड बाय 2। डिफरेंस 26 माइनस 13 करेंगे, 26 माइनस 13 अपॉन 2, 13 by 2 and 13 by 2 is nothing but 7.5 नहीं 6.5 km/h. That's the answer, 6.5 for speed of the river. ठीक है, moving ahead with the next. Train 100 meter running at the speed of this, the time it will pass a man standing on the platform. Remember, ये है हमारी ट्रेन, yes. अब यहाँ पर इसको एक मैन कहीं तो रुका है समवेयर ऑन द प्लेटफॉर्म। दिस ट्रेन इज बेसिकली 100 मीटर एंड इट इज क्रॉसिंग दिस पर्सन इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम दिस ट्रेन विल पास दिस पर्सन, दैट्स आस्क्ड द क्वेश्चन। एंड स्पीड इज गिवन 18 km/h, दिस इज स्पीड। एंड द डिस्टेंस, whenever a train is crossing the man, what you have to take the distance, length of the train only. Whenever a train is crossing the man or pole or tree, these words will be given, man or pole or tree, distance is nothing but length of the train. कितना है ये, 100 मीटर। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इज 100 मीटर। बट रिमेंबर वन थिंग, ये क्या है, मीटर है, ये क्या है, km/h है। तो आपको एक चीज़ पता है, आई होप यू नो, km/h से मीटर/सेकेंड में स्पीड कन्वर्ट करना है तो v मल्टीप्लाई बाय 5/18, एंड मीटर/सेकेंड से km/h पे स्पीड कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट, देन इट इज़ उल्टा 18/5। नाउ प्रेजेंटली क्या करना है हमको, 18 km/h वी हैव टू कन्वर्ट टू मीटर/सेकेंड। वाई, बिकॉज दिस इज मीटर्स, डिस्टेंस इज मीटर्स, तो लेट अस कन्वर्ट दिस टू मीटर/सेकेंड। तो क्या किया आपने, 18 को एज इट इज लिखा, km/h से मीटर/सेकेंड, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 18, यू हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड टाइमिंग एज इट इज, 18 एंड 18 विल गेट कैंसल, 5 से ये नंबर कट करेंगे, 5 1 5, 5 2 5 0, टाइमिंग इक्वल टू 20 seconds. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। 7 year ago रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले, 7 year ago, फादर और बेटा 4:1 पे थे। 7 year hence, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो प्रेजेंट आएगा, फर्स्ट प्रेजेंट विल कम, एंड आफ्टर दिस 7 year later विल कम, 7 year later. This is the meaning of 7 year hence, from today 7 year ahead. What will be the ratio? Ratio of their age will be 2:1. Yes, this is given. What is the ratio of their present age? So many ways this question can be done. If you are using x method, 4x and 1x you can write, ठीक है। So I hope you know that method. Some of you are using that method. थोड़े लोग ऐसी मेथड यूज़ करते हैं। चलो मैं दोनों मेथड क्विकली बताता हूँ। अगर आप कर रहे हो मेथड नंबर 1 से, तो उसको 4x लेना है, 1x लेना है, हाँ
4x लिया फादर और सन को ले लिया 1x। अब मुझे बोलो 7 ईयर से इस 7 ईयर तक टोटल डिफरेंस कितना है, 14 ईयर्स का है। तो यहाँ से प्लस 14 ईयर करना पड़ेगा। आफ्टर 14 ईयर्स ओके, व्हाट विल बी द रेशियो, 2/1, then cross multiply this number here and this side here, 1 into 4x, 1 into 14, 1x into 2, 2x, 14 into 2, 28, 2x इस साइड आएगा, 4x minus 2x, 2x, 14 will go that side, 28 minus 14, x is equal to what, 2 1s are 2, 2 7s are 14, x is equal to 7. If x equal to 7, what is 4x? Let's find this. 4x कितना होगा, x की वैल्यू 7 है तो 4 into 7 28 ईयर्स होगा यहाँ। 1x कितना होगा 7, ये हो जाएगा हमारा 7 ईयर हो जाएगा। तो ये भी निकल के आएगा। क्वेश्चन आस्क्ड इज नॉट दिस, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज आस्क्ड। तो क्या करेंगे, 28 ईयर से ये 7 ईयर से, व्हेन 7 ईयर एगो, तो प्रेजेंटली ही विल बी 28 प्लस 7 ईयर, बिकॉज 7 ईयर से प्रेजेंट पे जाना है तो 28 पे प्लस 7 करना है। तो हियर ही विल बी 35 ईयर्स, हियर ही विल बी 7 प्लस 7 14 ईयर्स। दीज आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, ठीक है, दीज आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, रेशियो। सो इसको हम इधर साइड में कर देते हैं सो दैट वी विल अंडरस्टैंड। 35 है, ये 14 है, 7 2s 7 5s 5 ratio 2 is the present ratio here, 5/2. Another shortcut method is also there, but most of you are doing this method, so I am telling this method. 2 table and 3 chair cost is 2000. okay, तो 2 table profit loss वाला क्वेश्चन है, 2 table plus 3 chairs total cost CP is 2000. 3 table plus 2 chair total cost is 2500. What will be the cost of 1 table and 5 chair? 1 table कैसे निकालेंगे, 1 table का कितना है, देखो ये बेसिकली 2 लीनियर इक्वेशंस हो गए with 2 variables. How to solve this? Make either t or coefficient of t or c as same. We will do one thing, we will make the coefficient of table same. टेबल को सेम कर देंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का LCM 2 and 3 का LCM कितना है 6. ओके, LCM of 2 and 3 is basically how much, 6. Let us make this 6. इसको 6 कैसे करेंगे, 2 into which number is 6, 2 3s are. इसको 6 करना है, 3 into which number, 3 2s are. तो क्या करना है, इक्वेशन को फिर से अब लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 2s are 60, 3 3s are 9c and 3 2s are 6000. यहाँ पर 2 3s are 60, 2 2s are 4c, ठीक है, एंड 2 25s are 5000. ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड माइनस माइनस माइनस, 60 कैंसल, 9 minus 4 is 5c, 6000 minus 5000 is 1000. So c is equal to 5 से कट करो 0 0 200. So c is equal to 200. That is nothing but एक चेयर आपका कितने का है, 200 रुपये का एक चेयर है। 200 रुपये का एक चेयर है, तो मुझे बताओ एक टेबल कितने रुपए का होगा। इसमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो जो आपको पसंद है, मुझे पहला वाला पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 2t plus 3c आई एम राइटिंग अगेन 2000। अब यहाँ से हमने चेयर को उठाया, चेयर की कीमत कितनी है, 200 रुपये है, चेयर में डाल देंगे उसको। तो 2t प्लस एक चेयर 200 रुपये का, तो 3 चेयर 3 into 200, 3 into 200 600 होगा कि नहीं, यस हमने लिखा यहाँ पे 600। सो ये नंबर को इधर करेंगे, 2000 माइनस 600, 2000 में से 600 को माइनस करेंगे, हाउ मच 1400 मिलेगा। तो 2t इक्वल टू 1400, t इक्वल टू 2 7s 2 0s 2 0s, t इज इक्वल टू 700। तो 1 टेबल 700, एक चेयर 200 रुपये का। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक टेबल और 5 चेयर मिलके। एक टेबल तो मेरे पास निकल के आ गया 700 रुपये का है। 5 चेयर कितने होंगी, 5 चेयर होंगे 5 into 2 1000 रुपीज़ का होगा, है ना। 5 मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपये ईच चेयर, दैट इज 1000 रुपया। 700 प्लस 1000, 700 प्लस 1000 दैट इज 1700। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 1700 रुपीज़। ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में प्रेजेंट है।
से टाइम तो है मेरे पास थोड़ा सा, एक 10 मिनट है, बिकॉज आई हैव अनदर स्टूडेंट्स आर वेटिंग, सो आई हैव टू मूव। अरे कहाँ चले गए हम, 1 मिनट, इधर है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर 336 अ मैन गेन्स 36। अच्छा, इन हाउ मेनी रुपीज शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 15%? क्या बोला है, सेलिंग द आर्टिकल फॉर 336 अ मैन गेट्स 36 रुपीज। अच्छा, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज बेसिकली प्रॉफिट। तो लेट अस फाइंड द कॉस्ट प्राइस फर्स्ट। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 336 में सेल किया एंड ही गॉट 36 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस थोड़ा कम था, कितना कम था, 336 में से 36 माइनस कर दो, या फिर आपको लिखना है तो ऐसे लिखो, SP माइनस प्रॉफिट, बट डोंट राइट दिस ऑल थिंग्स डायरेक्टली, यू शुड डू इन द एग्जाम। 336 माइनस 36 इक्वल टू 300 रुपीज़, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। 15% का प्रॉफिट चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। 15% का चाहिए, तो प्रॉफिट 15% चाहिए हमें। 15% किसका, 15%, लेट अस फाइंड 15% ऑफ 300 कितना होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट आएगा 45 रुपीज़, 10% प्लस 5%, लेकिन सिंस everyone is you are doing something I think like this, we will do like this। तो 15 3s are basically 45 रुपीज़, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट इन रुपीज़, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस शुड बी कॉस्ट प्राइस प्लस योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट 345 रुपीज़, 345 रुपीज़, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, 345। देखो मैथ्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सेम क्वेश्चन हम 2-3 अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज आई एम टेलिंग यू सिंस एवरीवन यू आर फ्रॉम 11th 12th बैकग्राउंड, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक मेथड्स, दिस थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी मेथड्स आर ऑल्सो देयर, ओके, बट you can go with this। what will be the compound interest on 6000 for 3 years at 8%? अच्छा, मतलब हर साल के लिए अलग अलग रेट दे दिया, देखो 8% पहले साल, 10%, फिर 12%। अब ऐसा वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला आप लगाओगे, वो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 raised to t, क्वेश्चन विल बिकम टू मच लेंथियर। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको।